265, illustration 7, 265, illustration 7, from the following information and the balance sheet of how many years? 2 years. Of Nirav company, we need to calculate the cash flow from operating activities. Now, what is new in this sum is that we are not given with balance sheet in any of the sum. We are not given with balance sheet in any of the sum. We are just given with information of profit, expense, income, current asset and current liabilities. With those limited information, we were preparing our cash flow. From which activity? Operating activities. But I have told you in the very first lecture that the cash flow from operating activity, now operating activity is said to be income generating activities. Operating activity क्या है अपना? Income generating activity. So we come to know about income generating activity from our profit and loss account. So what we need to do right now in our balance sheet, we need to first locate कि which information is related to our cash flow, उसे हम टिक करेंगे and then उसी को लेके हम फिर अपना पूरा sum करेंगे. Sure? Let's start reading the balance sheet. First, share capital. But you did so many sums. Have you seen somewhere share capital? No. So put a cross. It will not come in operating activities. P&L. P&L. Yes, that was starting point. तो वहाँ पर लिखो SP, starting point. Then non-current liabilities में there are 12% debentures. उसको भी टिक करो. I'll tell you. हम उसे कहाँ देखने वाले हैं? I'll tell you. Then current liabilities do we take in operating activity? Current liabilities. Current liabilities. Yes. We come to a point operating profit before changes in. उसके बाद हम current assets, current liabilities को ही bifurcate करते हैं. तो yes, ये भी बैंक ओवरड्राफ्ट को टिक करो, creditors को टिक करो. But a proposed dividend and provision for taxation उसे भी टिक करो. Then we go on to the asset side. Tell me, do we see fixed assets? Tangible, intangibles, assets? No. But do we see current asset? Yes. Take करो current asset. Yes, आएगा. Then additional information में dividend paid. Now interim dividend paid का मतलब क्या? In a year which is of 12 months, we are paying dividend twice. Interim का मतलब साल के बीच में एक बार डिविडेंड देंगे एंड देन ईयर जब खत्म होगा तब एक बार और डिविडेंड देंगे. तो इंटरिम का मतलब क्या? इन बिटवीन ऑफ सम ईयर, इन बिटवीन. तो हमने डिविडेंड पे करा. अच्छा, डू वी शो डिविडेंड पेड समवेयर इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? कहां? ऐड. हम प्लस करते थे ना डिविडेंड पेड, तो वहां पर लिख दो प्लस. एंड न्यू डिबेंचर्स आर इश्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर. तो दैट इंफॉर्मेशन क्या काम की है वो भी मैं बताऊंगा. चलो बेटा फॉर्मेट बना लेंगे. कैसा था अपना फॉर्मेट जरा बताओ. या लिखा जाए स्टेटमेंट शोइंग. बट आर यू गेटिंग व्हाट इज न्यू इन द सम? Yes. What is new in this sum? Are you getting that? Yes. Statement showing cash flow from operating activities. Statement showing cash flow from operating activities. Particulars, amount, particulars, amount. Now it will start with profit of the current year उसमें हम लेस क्या करेंगे?
नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, 3-4 लाइन छोड़ देंगे, हम ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस, provisions, and the last is financial expenses. Okay? Okay? Let's start. Let's start. But first, do we see that share capital? No, we have ignored it. P&L accounts? Yes. जरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखो 3 लाख है और अभी का 4,50,000 हो गया. So how much is the profit we made? 1,50,000. So the profit what we have made is 1,50,000. Okay. Then the next item what we ticked was debentures. अब बेटा उसको मैंने क्यों टिक किया डिबेंचर्स को? डिबेंचर्स के पहले जरा देखो क्या दिया है 12%. नाउ 12% का मतलब ये डिबेंचर्स पर हमें 12% क्या देना है? इंटरेस्ट. एंड इफ आई पे इंटरेस्ट, इफ आई पे, तो दैट इज ट्रीटेड एज अवर नॉन कैश फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में हमको वो ट्रीट करना है, इसलिए हम ऑपरेटिंग में उसको ऐड बैक करेंगे 12% डिबेंचर्स. तो जरा डिबेंचर्स देखो 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 यहां जरा ध्यान, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का कितना है जरा चेक करो. प्रीवियस ईयर का कितना है? 2 लाख और करंट ईयर का कितना है? 3 लाख. नाउ कैन आई से इसमें 1 लाख का एडिशन हुआ डिबेंचर्स का? देखो जरा, ऐसा मैं बोल सकता हूं 1 लाख डिबेंचर्स और बढ़े, लेकिन लास्ट लाइन पढ़ो, वो डिबेंचर्स इंक्रीज कब हुए? वो डिबेंचर्स इंक्रीज कब हुए? एट द एंड ऑफ द ईयर. मतलब कहना है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 2 लाख थे, देन एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख हुए, तो टोटल हो गए कितने? टोटल हो गए कितने? तो कहना है से मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 2 लाख का था, उसमें 1 लाख के डिबेंचर्स एट द एंड आए, यस और नो? और फिर वो हो गया कितना? 3 लाख. नाउ जो डिबेंचर्स आए 1 लाख के एट द एंड, तो कहना से अगर साल के एंड में ये लोग आ रहे हैं तो उस पर उनको कोई इंटरेस्ट मिले? क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंस है मतलब 1 अप्रैल અને આજે આયા એટ ધ એન્ડ એટલે they came on 31st માર્ચ, તો વર્ષના એન્ડમાં અગર આયા તો આ લોકો પર કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ ભરવાનો? ઇન્ટરેસ્ટ ભરશે કેના પર? આપણે ઓપનિંગ બેલેન્સ પર. So how much will be my amount of interest on debentures? Can I say 2 लाख के 12% 20, and where do I show as financial expense? Interest on debentures 2 लाख के 12%, that's 24,000. 2 लाख के 12% that is 24 lakhs. 24,000. I'm sorry, 24,000. Sorry. Then current liability में बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल्स वो तो हम बाद में लिखेंगे, लेकिन बड़ा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा लेने का? We have to take proposed dividend. Taxation provision current year, दोनों ही कौन सा लेने का? सो लिखा जाए proposed dividend हम लेंगे करंट ईयर का, that is 50,000, और बाजू में ये भी लिख दोगे ये प्रोविजन है,
कि हम करंट ईयर में इतना प्रपोज डिविडेंड करने का कोशिश कर रहे हैं, एंड देन टैक्सेशन provision that is also for the current year, but how much is the amount for the current year again? 50,000. Again it is 50,000. Then asset में अगर हम जाएंगे, asset में तो fixed asset में tangible intangible नहीं आएगा, current assets will come later on, वो working capital में आएगा. और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, कितना इंटरिम डिविडेंड पेड, कितना इंटरिम डिविडेंड पेड, कितना 20,000. बेटा वो क्या है जरा समझो, वो क्या है? लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड देखो कितना है. लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड 30,000. मतलब हमने अपने शेयर होल्डर को लास्ट ईयर क्या प्रपोज करा, हम तुम्हें कितना डिविडेंड देंगे, और 30,000 में से 20,000 हमने ये ईयर में पे कर दिया. हमने ये ईयर में उनको कितना प्रपोज करा है, जो हम पे करेंगे इन द नेक्स्ट ईयर. तो लास्ट ईयर का 30,000 में से अभी कितना पे कर दिया, 20,000. तो लिख दो इट्स पेड, राइट, इट्स पेड. सो इंटरिम डिविडेंड पेड. हाउ मच इज माय अमाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड पेड, 20,000. बट अब जरा एड लेस करके टेल मी द फाइनल अमाउंट. इंटरिम डिविडेंड શું છે કે ભાઈ ડ્યુરિંગ ધ યર મે ડિવિડન્ડ પે કર્યું. હવે આ પ્રપોઝડ ડિવિડન્ડ જો મે કયું લીધું, કરન્ટ યર નું. ગયા વર્ષનું કેટલું છે જરા જો, ગયા વર્ષનું 30,000. તો મારે ગયા વર્ષનું જે 30,000 દેવાનું હતું એમાંથી મે કેટલા આપી દીધા, 20,000. दैट इज द लॉजिक. बेटा स्टार्ट करो, चलो टोटल्स करके बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 लाख. ये nil है, ये 1,44,000 है, तो कितना आ रहा है, 2,94,000. बेटा ये जो आया 2,94,000, इसे हम क्या कहेंगे, बेटा ये हम क्या कहेंगे, 2,94,000 को ऑपरेटिंग प्रॉफिट before changes in working capital. 2,94,000 is operating profit before changes in working capital. अब जरा बेटा वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, चलो वर्किंग कैपिटल के लिए बताओ जरा क्या आएगा. करंट लायबिलिटीज में जाएंगे. व्हाट इज द फर्स्ट आइटम, करंट लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट. लास्ट ईयर इट वाज 40, करंट ईयर इट इज, सॉरी लास्ट ईयर इट वाज 60, करंट ईयर इट्स, लास्ट ईयर 60, करंट ईयर 40. व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट. बेटा डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बेटा वर्किंग कैपिटल में क्या होगा, वर्किंग कैपिटल में क्या होगा, डिक्रीज. कितना, तो 20,000 वो हम माइनस कर देंगे. बेटा क्रेडिटर्स from 90 it became 60, again decrease. Decrease in trade payables, decrease in trade payables कितना है, 30,000. Decrease in trade payables, that's 30,000. उसके बाद करंट असेट्स जरा देखो, करंट असेट्स from 3 lakh it became to 2 lakh. बड़ा from 3 lakh it became to 2 lakh. So लिखा जाए decrease in current asset. But this decrease will what happen? It will increase my working capital.
सो 1 लाख रुपीस हम इंक्रीज दिखा देंगे। सो बेटा 50 माइनस करके 1 लाख जोड़ो, 3,44,000। But that's not our answer. 3,44,000 is not our answer. One thing is still missing. One thing is missing. क्या? लिखो बेटा, लिखो. Yes, less. Tax paid for the previous year. Now, beta, how will I come to know कि what is the tax paid in the previous year? Provision for taxation पर जाओ. Provision for taxation. Last year का कितना था? लास्ट ईयर का प्रोविजन, तो क्या मैं सिर्फ उतना टैक्स हम पे कर देंगे करंट ईयर में। सो 3,04,000 दैट्स माय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। 3,04,000 इज माय कैश फ्लो फ्रॉम operations. $3,04,000 is my cash flow from operations. But any doubt? Any doubt? Now this was the sum which we did. This operating activity from a balance sheet. इसमें से करा हमने from balance sheet. Now go on to page 268, illustration 10. वो डिग्री बैंक और सम में नहीं दिया, सम में जो आंसर दिया है हाँ उसमें डिग्री इन बैंक और अमाउंट नहीं दिया और 3,22,000 ओह बेटा, ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ना बेटा, यहाँ ध्यान, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट हमने 20 ले लिया है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट अपनी फाइनेंस एक्टिविटी में जाएगा, इसलिए उन्होंने वहां पर नहीं लिया, उसको निकाल दो। इट विल कम इन फाइनेंस एक्टिविटी, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? ये लोगों से लोन लेना, एंड लोगों से लोन लेना, लोन का रीपेमेंट करना, that will come in all which activity? Finance activity. I'm sorry बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं लेंगे, बाकी सब माइनस करके बेटा कितना आंसर आ रहा है? दिस इज हाउ 3,64 અને 40,000 टैक्स पे किया तो 3,24 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट के बाजू में लिख लो बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट के बाजू में पेंसिल से लिख दो, इट विल कम इन फाइनेंस एक्टिविटी। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाजू में लिख दो, इट विल कम इन फाइनेंस एक्टिविटी। ओके, इसलिए हमने उसको ऑपरेटिंग में अभी नहीं लिया है, बिकॉज लोन टेकन, लोन रीपेमेंट, दे वुड कम इन विच एक्टिविटी? फाइनेंस। अब बेटा इलस्ट्रेशन 10 की जो मैं बात कर रहा हूं, यहां ध्यान, इलस्ट्रेशन 10 की जो मैं बात कर रहा हूं, ये वाला सम हमने किस पर से बनाया? बैलेंस शीट पर से। हमने ये वाला जो सम बनाया वो किस पर से बनाया? बैलेंस शीट पर से। अब ये जो हम सम बना रहे हैं, इलस्ट्रेशन 10 जो है, दैट वी डू इट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो अब हम सम करेंगे इलस्ट्रेशन 10, दैट वी डू इट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा वेरी सिंपल सम है, वी स्टार्ट रीडिंग इट वन बाय वन। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मीरा लिमिटेड वी नीड टू प्रिपेयर व्हाट? कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग। अच्छा बेटा, डू वी टेक रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेटा व्हाट्स द स्टार्टिंग पॉइंट? देखो ना यार, व्हाट्स द स्टार्टिंग पॉइंट? प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। उसमें हम लेस क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उसमें हम ऐड क्या करेंगे? नॉन कैश एक्सपेंस, प्रोविजंस और फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो डू वी शो सेल्स? नो, पुट अक्रॉस।
नहीं आएगा, सेल्स नहीं आएगा। अदर इनकम में इनकम ऑफ रेंट माइनस करेंगे तो वहां लिखो लेस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट माइनस, इंटरेस्ट इनकम माइनस। अब एक्सपेंस में जरा ध्यान, एक्सपेंस में बेटा डू वी शो इन दिस एक्सपेंस जो हम वो ऐड करते थे वो कौन से लेने हमने सिर्फ नॉन कैश प्रोविजंस एंड, तो जरा देखो परचेज ऑफ गुड्स डू वी शो पुट अक्रॉस नो, that will come if we are doing some by direct method. This is we are doing it by indirect. So purchase of goods will not come. Change in stock no, employee benefit no, depression yes. What will I do? Add back because it's a non cash expense. Add करेंगे। Patent amortized plus करेंगे। Loss on sale yes plus करेंगे। Manufacturing no, insurance no, salary never, administrative sales distribution no, profit before tax दिया है 4,69,000 उसका क्या करूं? Very good, that is my starting point, लिख दो, that's my starting point। अब नीचे देखो इंफॉर्मेशन ऑन करंट असेट्स करंट लायबिलिटी, तो वहां पर हम एरो भी कर दे रहे हैं, सब कुछ मैं ही करके दे रहा हूं, फिर खाली तुम्हें मजदूरों की तरह मजदूरों को खाली फिलिंग करना है। या डेटर्स फ्रॉम 78 इट इज नाउ 90, सो यहां पर ऐसा इंक्रीज वाला एरो दिखाओ, इंक्रीज हुआ डेटर, कितने से इंक्रीज हुआ? 12,000, तो लिखो बाजू में ब्रैकेट में 12,000 से डेटर इंक्रीज हुआ, लेकिन इज इट इक्वल टू, लिखो इट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल डिक्रीज, दैट्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। देन फ्रॉम क्रेडिटर्स 68 से 80 हुआ, 68 से 80 इंक्रीज, तो अपवर्ड एरो कितने का? 12,000। Now बेटा creditors 12,000 से increase हुए, that is equal to working capital also increase, very good, working capital also increase। Then bills payable from 75 it became 65, 75 से 65 डिक्रीज, तो लिखो वहां पर 10,000 डिक्रीज। नाउ बिल्स पेएबल अगर 10,000 से डिक्रीज, वर्किंग कैपिटल आल्सो डिक्रीज, वर्किंग कैपिटल आल्सो डिक्रीज। देन बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम 10,000 it went to 8,000, तो बेटा बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज, बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज कितने से? 2,000, so working capital देखो it is equal to working capital increase। Stock from 90 it became 110, from 90 it became 110 increase, but how much? 20,000, but what about working capital? Stock has increased, working capital will decrease। But next, outstanding salary, outstanding salary from 18 it is 15 decrease, how much it has gone down? 3,000, so working capital decrease। And the last, prepaid insurance 9,000 to 7,000, it's a current asset which is decreasing, तो वर्किंग कैपिटल बेटा 5 मिनट फटाफट सम खत्म करो, and that will all complete the sums on operating activity, but that सब पता ही नहीं था। Next lecture tomorrow we'll start with investing activities, I'll start with investing activities। बड़ा जल्दी बंद कर देना वीडियो लेक्चर।